to one and all present here, respected sir and all my dear friends. Myself Priyaratna Khaka, student of MSc second semester microbiology. Today I am going to represent my seminar on biosynthesis and degradation of lipid. This is the content of the topic through we will discuss about the degradation and biosynthesis of lipid. Firstly we will discuss about the introduction of lipid. तो जो वर्ड लिपिड है वो आपका डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, दैट मीन्स लिपोज विच मीन्स फैट. अगर हम लोग लिपिड को डिफाइन करते हैं तो वो एक ऐसा कंपाउंड है जो रिलेटिवली इनसॉल्यूबल होता है वाटर में, बट वो फ्रीली सॉल्यूबल होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लाइक बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ईथर, हॉट अल्कोहल, एसीटोन एक्सेट्रा. जो सबसे सिंपलेस्ट लिपिड होता है वो आपका फैट होता है विच आर ट्राई ईस्टर made up of 1 glycerol and 3 fatty acids. Then we will discuss about the function of lipid. जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल मेम्ब्रेन का वो आपका लिपिड होता है. वही सेल मेम्ब्रेन को परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही हमारे इंटरनल ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करके रखता है एंड सर्व एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल, और वो हमारी बॉडी को शेप और स्मूथनेस प्रोवाइड करता है. दिस सर्व एज अ सोर्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन. जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल as well as in the formation of lipoproteins. कोलेस्ट्रॉल एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में. साथ ही ये सिंथेसाइज होता है आपका बाइल एसिड से, हार्मोन्स, विटामिन डी, एंड इट इज़ अ प्रिंसिपल स्टेरॉल ऑफ हायर एनिमल्स एंड इट इज़ सबसे ज़्यादा ही अबंडेंट होता है नर्व टिश्यूज़ में और गॉल स्टोन्स में. देन वी विल look into the biosynthesis and degradation of lipid. Biosynthesis and degradation of lipid both are come under the lipid metabolism, which involves the breakdown or storage of fats for the energy and the synthesis of a structural and the functional lipid. ये क्या करते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कुछ एनिमल्स में ये जो फैट होते हैं वो एज अ फूड सोर्स की तरह भी वर्क करते हैं एंड आर सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर. Then the biosynthesis of lipid. Biosynthesis of lipid occurs mainly in liver and adipocytes. Fatty acids. The synthesis and degradation of fatty acids both are completely different pathways. When glucose is plentiful, a large amount of acetyl coenzyme A is produced, which is a main or first molecule which are required for the synthesis of fatty acid, and the NADPH is also required in the form of energy, and it is occurred in a glucose oxidation in the pentose phosphate pathway. Through this diagram we will try to understand how the fatty acid are synthesized in our body. Acetyl is the first molecule which is required for the synthesis of fatty acid and are synthesized by acetyl coenzyme A. When the acetyl coenzyme A is combined with oxaloacetate, it leads to the formation of citrate. And this reaction occurs inside the mitochondria. But the main point is जो फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बल्कि साइटोप्लाज्म में होता है. But the main fact is the acetyl CoA are unable to cross the mitochondrial membrane. That's why it is combined with oxaloacetate to form citrate. Now the citrate are able to cross the mitochondrial membrane.
when once the citrate cross the mitochondrial membrane, it leads towards the cytoplasm, and the citrate form oxaloacetate and release acetyl coenzyme A. In this process, we require some amount of energy in the form of ATP, which is converted into ADP in the releasement of an inorganic phosphate. Now this oxaloacetate is converted into malate, and the malate is converted into pyruvate because this oxaloacetate are also unable to cross the mitochondrial membrane through the convertation in the malate. It will easily cross the mitochondrial membrane, and ये जो सिस्टम है वो कंटिन्यूसली चलते रहता है हमारे बॉडी के अंदर. But the main point is how the acetyl coenzyme A form fatty acid. तो ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ACP के साथ बाइंड होता है और एसिटाइल ACP का फॉर्मेशन करता है. ये जो ACP है वो है आपका एसाइल कैरियर प्रोटीन, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए को कैरी करता है. इसका नाम एसाइल इसीलिए है क्योंकि ये केवल एसिटाइल ग्रुप को ही नहीं बल्कि और भी ग्रुप को कैरी करता है. नाउ द एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच्ड विद carboxylic group in the form of bicarbonate, which leads to the formation of malonyl coenzyme A. Now again the malonyl coenzyme A, and in this process we require some amount of energy. in the form of ATP. Then in the next reaction, the malonyl coenzyme A combined with ACP and leads to the formation of malonyl ACP. That means the malonyl acyl carrier protein. अब इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है. फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग यहाँ पे पाल्मेटेड फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेंगे जिसके पास 16 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि जो एसिटाइल ACP होता है वो मेलानाइल ACP के साथ कंबाइन होता है और एक कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल ACP विद द रिलीजमेंट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ये जो एसिटाइल ACP है वो 4 कार्बन कैरी करेगा, जो मेलानाइल ACP है वो 3 कार्बन कैरी करेगा और जो एसिटाइल ACP है वो 2 कार्बन कैरी करेगा. अब बट द मेन पॉइंट इज इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड देयर इज no ketone group is present. For that it must be removed from the ketone group. For the removal of ketone group we use the reduction process. That means the addition of hydrogen. In this process we require a small amount of energy in the form of NADPH which is converted into NADPH. अब जो प्रोडक्ट हम लोग को मिला या जिस रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग D3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिल ACP बोलते हैं. अब अगेन इसमें डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा. दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रिलीजमेंट हो जाएगा. देन द प्रोडक्ट वी गेट इज क्रोटोनिल ACP. देन अगेन इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर से इसमें रिडक्शन के प्रोसेस आगे. दैट मीन्स द NADPH इज कन्वर्टेड इनटू NAD+ and the product we get is butyryl ACP which carry 4 carbons. पर ये जो हम लोग को 16 कार्बन का जो पाल्मेटेड फैटी एसिड बनाना है उसको बनाने के लिए ये जो रिएक्शंस है वो 7 बार 7 टाइम्स राउंड अप होंगे. देन ओनली द 16 मॉलिक्यूल ऑफ palmitic fatty acid will be
formed. जैसे अभी क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में 4 कार्बन का फॉर्मेशन हुआ, देन सेकेंड राउंड में 6 कार्बन का फॉर्मेशन होगा, देन थर्ड राउंड में 8 कार्बन का फॉर्मेशन होगा, देन फोर्थ में 10, फिफ्थ में 12, सिक्स्थ में 14 एंड फाइनली सेवन्थ में 16 कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा. दैट मीन्स योर पैल्मेटिक फैटी एसिड इज फॉर्म्ड. अब हम लोग इसको क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में इसमें क्या प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब इसकी स्टोइशियोमेट्री. जैसे हम लोग के पास ये 7 टाइम्स अगर ये चलेगा, दैट मीन्स हमको 7 टाइम्स अगर ये रिएक्शन चलेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 7 एसिटाइल कोएंजाइम की ज़रूरत होगी. दैट ऑल्सो मीन्स कि 7 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे, 7 टाइम्स एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. और ये क्या फॉर्म करेगा, 7 मेलोनाइल कोएंजाइम A प्लस 7 ADP. देन इसमें क्या हो रहा है कि एसिटाइल कोएंजाइम A आपका 7 मेलोनाइल कोएंजाइम A के साथ कंबाइन हो रहा है और 14 NADPH की ज़रूरत हम लोग को पड़ रही है, क्योंकि हम लोग ने ये रिएक्शन में देखा कि 2 जगह पे रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है. तो ये 2 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स हम लोग के पास 14 NADPH की ज़रूरत हम लोग को पड़ेगी 16 कार्बन के पैल्मेटिक फैटी एसिड को बनाने के लिए. देन जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा वो होगा पैल्मेटेट विद द लॉस ऑफ 7 कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द 14 NADP प्लस. तो अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट के लिए ये जो दोनों रिएक्शंस इनको कंबाइन कर देते हैं. 7 एसिटाइल प्लस 1 एसिटाइल कोई, दैट मीन्स A एसिटाइल कोएंजाइम A, 7 कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस 7 carbon dioxide will be cancelled out and 7 melanine coenzyme came from here and the 14 NADP and this 7 carbon dioxide will cancel out from the 7 carbon dioxide. then ये जो 7 ATP है यहाँ पे आ जाएगा और ये जो 14 NADPH यहाँ पे आ जाएगा. तो जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा वो होगा पैल्मेटेट विद द लॉस ऑफ 14 NADPH प्लस 7 ADP. देन है आपका डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड. जो डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड है वो आपका इज अकम्प्लिश्ड बाय बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे. दैट मीन्स इट टोटली डिपेंड्स ऑन बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे. जो बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे होता है वो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करने में या ब्रोक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी. मोर स्पेसिफिकली जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है उसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स हैं उनका ब्रेक डाउन होता है और वो कन्वर्ट होते हैं एसाइल कोए स्मॉलर चेन्स में. ये जो रिएक्शंस होते हैं वो रिलीज़ करते हैं आपके एसिटाइल कोएंजाइम A FADH2 and NADH. और ये जो तीनों मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके इंटर करते हैं दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में जिसको हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल बोलते हैं. और ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूस टू बी यूज्ड एज अ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. और जो बीटा ऑक्सीडेशन है गोज ऑन, और ये जो बीटा ऑक्सीडेशन जो साइकिल है वो तब तक चलती है जब तक इसके पास 2 एसिटाइल कोएंजाइम A के मॉलिक्यूल नहीं बन जाते, और तब तक चलता है जब तक एसाइल कोएंजाइम A चेन का कम्प्लीटली ब्रोक डाउन नहीं हो जाता. यूकैरियोटिक सेल्स में जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बट ऑन अदर हैंड इन प्रोकैरियोटिक्स इट ऑकर्स इन साइटोसॉल. Then the beta oxidation steps. The beta oxidation cycle is accomplished by 4 steps. The first one is dehydrogenation, second is hydration, third is oxidation, and the fourth one is thiolysis. And each step is catalyzed by a distinct enzyme. That means इनके हर एक स्टेप में सेवरल टाइप्स के एंजाइम से इन्वॉल्व होंगे बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल को प्रोसीड करने के लिए. सो पहला है आपका डिहाइड्रोजनेशन. ये फर्स्ट स्टेप है. इसमें क्या होगा कि जो एसाइल कोएंजाइम A है वो ऑक्सीडाइज होगा एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसको हम लोग एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजनेज बोलेंगे. ये एक्चुअली में क्या करेगा, इट formed a double bond between the carbon number 6 and the third and form a product which is known as the
and form a product which is known as the trans delta square enoyl coenzyme A. This step uses FAD and produce FADH2, which will finally enter into the citric acid cycle and form ATP to be used as energy. इसमें जो जितने भी एनर्जी यूज़ होंगी वो ATP के फॉर्म में एनर्जी को यूज़ किया जाएगा. देन आपका सेकेंड स्टेप है हाइड्रेशन सेकेंड स्टेप में ऑलरेडी द डबल बॉन्ड हैज़ बीन ऑकर्ड इन द पोजीशन कार्बन नंबर 2 एंड द कार्बन नंबर 3 विच इज़ नोन एज द ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम A is hydrated and leads to the formation of product which is known as the L-beta hydroxyl acyl coenzyme A, which has a hydroxyl group in carbon number 2 in the place of double bond. This reaction is catalyzed by another enzyme that is known as the enoyl coenzyme A dehydratase. इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनोइल कोएंजाइम ए है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा L3 हाइड्रोक्सिल एसाइल कोएंजाइम ए के प्रोडक्ट में. और इसमें क्या होगा, इस स्टेप में हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी. देन थर्ड है आपका ऑक्सीडेशन. इस स्टेप में क्या होगा कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो कि ऑलरेडी कार्बन नंबर सेकेंड पे प्रेजेंट है, जिसको हम लोग ने L3 हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बोला है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा. That means the removal of hydrogen by NAD+ in a reaction that is catalyzed by another enzyme which is known as the 3-hydroxyl acyl coenzyme A dehydrogenase and leads to the formation of a product which is known as beta ketoacyl coenzyme A, and which will enter into the citric acid cycle and the energy as required in the form of ATP. Then the final and the last step is थियोलिसिस. इसमें क्या होगा कि जो बीटा कीटोएसाइल कोएंजाइम ए जो ऑलरेडी थर्ड स्टेप में बन चुका था उसका क्लीवेज होगा थियोल ग्रुप के हेल्प से, जो क्या है एक दूसरा कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है. ये क्या करेगा, ये बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए को क्या करेगा, क्लीव करेगा कौन से पोजीशन पे, सेकेंड और थर्ड पे, जहाँ पे सेकेंड और थर्ड पे जहाँ पे क्या है कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है. और जो प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा उसको हम लोग को यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलेगा. पहला जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एसाइल कोएंजाइम ए और जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए. और ये जो क्लीवेज होगा ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होगा जिसको हम लोग बोलेंगे थियोलेस. और फाइनली ये क्या करेगा, दिस चेन दैट इंटर दी बीटा ऑक्सीडेशन साइकिल. ये जो 4 स्टेप्स आपने देखे ये था डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड. Then reference and thank you.